हम लोग का सबका फर्स्ट एक्सपीरियंस खाने का घर पे होता है एंड यूजुअली अपने माँ के हाथ के खाने का होता है. तो इज देयर एनी रेसिपी, फैमिली रेसिपी दैट यू हैव बीन एबल टू reinvent and present? So I've been very lucky that way, Devanshi. So I had a Bengali mother, a Punjabi father. I grew up in Delhi and then later on moved on to Lucknow, which is another food haven, right? And I've been married into a UP Thakur family. All different cuisines coming together, on my plate. So how my mother would do a shoshe march was very different from how I ate it otherwise everywhere around. And that probably because she learned it from my nani. Surprisingly, my dadu being a Bengali Brahmin, my nani was not a Bengali Brahmin. She came from another caste. And so the effect that it had on her cooking had an effect on my mom's cooking is something that I inherited from her. So my way of doing it is very different. And fortunately, my daughter has also learned the same from me. And I think it is going to pass on with the generations. But yes, so there are so many dishes that we've tried to, और एक बहुत interesting सी बात, the way my mom would do a aloo gobi, a typical bong style, to me doing an aloo gobi, which is a typical Punjabi style, to my mom-in-law doing an aloo gobi, which is a very UP style, were three dishes, same, exactly the same, with very different flavors, So what I'm trying to say is there is legacy in ghar ka khana. That is carried forward, चाहे कुछ भी हो जाए. तो वो पास्ता भी बनाएगी मेरी बेटी, वो लजानियास भी बेक करेगी, लेकिन वो जब वो फिश बनाएगी ना, वो एग्जैक्टली वैसी बनाएगी जैसे उसकी माँ बनाती थी. I guess that's it. Thank you. Coming back to the original question. I am so glad that something like this wasn't directed towards me. मेरी बेटी स्कूल में थी, 12 साल की है, और सब बच्चे ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारी माँ क्या चीज़ अच्छा बनाती हैं. किसी ने बोला पास्ता बनाती हैं, किसी ने बोला, और मेरी बेटी ने वापस आके मुझे बताया कि मम्मा मैंने उनको बताया कि आप बहुत अच्छा बटर टोस्ट बनाती हैं. Like I met somebody in the lift and they told me कि my son was asked in the class, तुम्हारी मम्मा सबसे अच्छा क्या बनाती? तो मेरे बेटे ने बोला रायता. So when I used to work in Times of India, we were all a lot of women. और हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था कि घर पे जाके we would do any kind of cooking. So that time I had not had a child. तो हम लोग ये मजाक करते थे कि जब हमारे बच्चे होंगे तो उनसे कोई कहेगा तुम्हारी मम्मी क्या बनाती है. What was said. Yeah, exactly. तो हम लोग कहते थे my child will say वो पेज अच्छा बना लेती हैं. We have to design the pages. So we used to say कि so whatever you are doing it to the best. So it does not have to be in the kitchen. But coming back to your question, which you had addressed to all three of us, so if I say that, through my art form, I have only been telling stories, and I have only been telling traditional stories. I will give two examples here. One is Sufi Kathak, which, like I said, is storytelling, which involves, we go up to 700 years back, the traditions, things. Now, when I was hunting for, because Sufi Kathak did not exist, I had to research. I went to Central Asia, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, tried to understand what the Sufi traditions are. मैं थोड़ा सा academic दिमाग की हूँ, तो मैं पहले research करती हूँ, तब perform करती हूँ. And then I wanted, so अब साहित्य में हमको मिलता है कि बाबा बुल्ले शाह नाचते थे, ठीक है. बाबा बुल्ले शाह की लाइफ हमें उनकी पोइट्री से मिलती है. किसी ने उनकी जीवनी नहीं लिखी कि इस साल में उन्होंने ये करा, इस साल उन्होंने ये करा. We find his history through his poetry. Now his poetry very nicely, it's a story, everybody knows कि बाबा बुल्ले शाह जो थे वो नाचते भी थे. वो एक बार औरतों के कपड़े पहनकर अपने पीर के वहाँ पर गए और वो नाचे भी थे. तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, ये सब रिकॉर्डेड है. पर अब एज अ डांसर, इफ आई वांट टू क्रिएट बुल्ले शाह's डांस, हमारे पास ये सब साहित्य में रिकॉर्डेड है, पर हमारे पास कोई विजुअल नहीं है कि बुल्ले शाह कैसा नाचते थे. अब जब कोई नाचता है, वो कोई या तो हाथ उठाएगा या गर्दन नीचे करेगा या बॉडी का कोई स्टांस होगा. ये मुझे नहीं मिल रहा था कि बाबा बुल्ले शाह कैसे नाचते थे. अब यहाँ पर कहानी की बात आती है कि हम कहानी को कैसे सच मान लेते हैं.
तो मैं अलग अलग कभी कलंदर सिलसिले की दरगाहों पर जाती थी और लोगों से ऐसी बात करती थी। मैं एक बार पानीपत पे एक दरगाह है बूशाह अली कलंदर साहब की, तो मैं वहाँ बैठी थी, तब तक एक जनाब आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप धमाल देखेंगी? तो मैंने कहा कि जी। तो उन्होंने कुछ फ़कीरों को बुलाया और वो लोग दे वर डूइंग अ काइंड ऑफ अ डांस जिसमें वो तलवार आँख में लगा के, इट वाज दे वर ऑल स्टोन्ड। सो आई वॉज डिसइंटरेस्टेड, मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। एंड ही रियलाइज, सो ही आस्क्ड मी कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने उससे सिर्फ, मेरा आप सेंटेंस देखिए और उसका जवाब देखिए कैसे आता है। मैंने उससे सिर्फ ये बोला कि मैं ये पता करना चाहती हूँ कि बाबा कैसे नाचते थे। वो बंदा पलट के मुझसे कहता है, बाबा तो ऐसे नाचते थे। देखिए, ना मैंने नाम लिया ना उसने नाम लिया। अब आप मेरे काम पर पूरा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाना चाहें तो आज के बाद लगा दीजिए, पर मैं खोज रही थी कि बाबा बुल्ले शाह कैसे नाचते थे। उस आदमी ने मुझे जवाब दिया कि बाबा बुल्ले शाह ये हाथ लेते थे। मैं समझ गई ये कहानी है, ठीक है। अब मैं जब भी बाबा बुल्ले शाह का कलाम नाचती हूँ स्टेज पर, तो मैं ये मूवमेंट ज़रूर लेती हूँ। आप मेरा कोई वीडियो देख लीजिए ना। दिस इज़ हाउ अ स्टोरी which perhaps has been passed on from generations as an oral narrative came to me, and how as an artist I incorporated it into my work and will leave it as a legacy for others to know with the story that, see, this is how we may have to recreate traditions. दूसरा मेरा जो काम है वो भी इसी पर है बिल्कुल, दैट इज़ जो मैं तवाइफ़ों पर काम कर रही हूँ, जो मेरा कोर्टिज़ान प्रोजेक्ट है। मैं सन 2009 से तवाइफ़ों की, कहना चाहिए, उनके प्रति रिस्पेक्ट के लिए बात कर रही हूँ कि हमें हिस्ट्री में विमेन परफॉर्मर्स को एक दूसरे नज़र से देखना है, आदमियों की सोच से नहीं देखना है, ठीक है। अब उसको जब हम बात करते हैं, यहाँ पर भी हमने नहीं देखा कि, देखिए, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स में हमको उनकी आवाज़ें मिल गई, उनके कॉम्पोजिशंस मिल गए, पर एक तवायफ कैसे नाचती थी ये हमको नहीं मिला। अब ये एक इमेजिनेशन है। हमको क्या मिला? कोई वीडियो रिकॉर्डिंग्स तो उस टाइम की मिली नहीं। हमको मिला कि कोई ब्रिटिश पेंटिंग मिली, हमको कुछ पिक्चर्स मिले लेटेस्ट स्टेज के, उसमें कोई ऐसे स्टांस लिए है, कैसे लिए है, मेरे को ये चीज़ें मिली। फिर मुझे क्या मिला? मुझे कथक में मिला दरबार सलामी, जो हम लोगों को एज करिकुलम सिखाया जाता है। अब दरबार सलामी किसी मंदिर में तो हो नहीं रही होगी, किसी राजा के दरबार में हो रही होगी। राजा के दरबार में कौन नाच रही होगी? राजा के दरबार में तवायफ नाच रही होगी। सो इस तरह से उन स्टोरीज को कोलेट करके आई रिक्रिएटेड कंप्लीटली कि वो तवायफ किस तरह का डांस करती होगी। फॉर श्योर वो बॉलीवुड वाला डांस नहीं करती थी। सो ये चेंज लाने के लिए फिर वही बात आती है कि स्टोरीज में अब ये कुछ ओरल नैरेटिव्स में मिले, कुछ हम लोगों को अपने डांस और म्यूज़िक में ट्रेडिशनली सिखाए जाते हैं, उससे लिए, कुछ लिए जो हिस्ट्री में, लाइक आई सेड, फोटोज़ मिली। तो उन सब से एक पूरा कोर्टिज़ान प्रोजेक्ट आज 16वां साल चल रहा है उसका, और अब मैं कह सकती हूँ तवाइफ़ फैशन में है। पर कल भी मैंने कहा था कि एक ज़माने में 2009 में जब मैंने शुरू करा था तो मेरे ऊपर बहुत मजाक उड़ाया जाता था। मेरे लिए कहा जाता था, अरे उसको बुला लो, मंजरी को, आजकल तो मुजरा करती है। सो दैट वॉज द स्टिग्मा दैट वॉज एसोसिएटेड विद द तवायफ्स। सो दैट थ्रू स्टोरी टेलिंग, उसी तरह लोगों को कहानी बता के, मैं क्या करती हूँ कॉन्सर्ट में, कहानी बताती हूँ। कहानी बता के उसको एज अ कल्चरल एक्टिविज्म टू चेंज द व्यू पॉइंट टुवर्ड्स वुमेन परफॉर्मर्स इज अगेन स्टोरी टेलिंग।